Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, and that is heat. You know what is heat? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy, and as you have seen that when the temperature rises in the atmosphere, then our body temperature also rise and we become sweat. जैसे ही हमारे दिन में डे टाइम एट द डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऑफ द सन, देन आवर बॉडी टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज एंड वी स्टार्ट स्वेटिंग at the noon time, and when it become temperature become cool down in the evening time, then our body also feel cool. In this way we can say our body can judge the difference in the temperature of the surrounding. How we can judge that? You know, we have 5 senses in our body, that is eyes, nose, ear, tongue and your skin. You know, by these 5 senses we can get the knowledge of the changes surrounding us. Like as you know, हम अपने टंग पर भी अगर कोई चीज़ टेस्ट करेंगे तो हमें उसके गर्म या ठंडे होने का एहसास होता है, बट बिफोर दैट वी पुट द फूड इन आवर हैंड, सो वी कैन टच द फूड दैट इज हॉट और कूल. ओके, इन दिस मैनर वी कैन जज द टेम्परेचर बाय आवर स्किन. In this way we have the sense in our body to judge the heat and the changes in the temperature surrounding us. So what is the heat now? I think you have understand that the heat is a form of energy. You know, energy can't be created and can't be destroyed. It's only changed its form from one to another. In this way we can say by increasing the temperature in the atmosphere, our body temperature also increase. And you know, we can judge our temperature by using the clinical thermometer. When your body become warm, you can measure your own temperature by using the clinical thermometer, which we can use at home also. So used of measure temperature of the human body, and that is clinical thermometer. And in the laboratory, when we are doing so many chemical reactions, at that time in the boiling water, in any boiling solution, we can measure the temperature of the solution by using laboratory thermometer. Remember that you can't use the clinical thermometer in the laboratory to measure the temperature of the boiling object, because it is manufactured in a different manner. This glass it has more tolerance power of the heat. यहाँ पे जो ग्लास यूज किया जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, that is different, so it can tolerate more temperature, so used to measure the temperature of the object other than the human body. ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यू कैन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो इन दिस वे यू कैन से इन द कोल्ड क्लाइमेट वी वियर विंटर क्लोथ. इन द कोल्ड क्लाइमेट, इन द विंटर टाइम you wear woolen cloth. You know why? Because in the winter we feel cool. In the winter we feel cool, and to get our body warm we use the woolen material. So why we use the woolen cloth in the winter? You know why? Because in the woolen clothes air become trapped. वुल वाले जो कपड़े जो भी आप पहनेंगे, स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, एंड व्हेन द एयर बिकम ट्रैप आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम, and the atmosphere temperature cannot change our body temperature. It can give us warm. And in the summer time, जब हम गर्मियों में what we prefer
cotton clothes. You know why? Because cotton absorb more water. So when we sweat in the summer, then cotton can absorb more sweat, and when this sweat get evaporate from your body, our body become cool because evaporation cause the cooling effect. In this way, you can choose whatever you want to wear in the summer and the winter. In this way, we can judge the temperature changes in the season, in different season and in the surrounding, and we can choose what should we wear the clothes according to the surrounding. Like modes of the transfer of heat. There are so many modes of transfer of heat. As I told you, energy can't be created and can't be destroyed. It only changes from one to another. Similarly, heat also transfer from one place to the another place, from one object to the another object. And for this transfer, there are different modes to transfer the heat from the one object to the other. These modes of heat, it depend on the objects by which heat is going to transfer into the other object. What are the mode of the transfer of heat? Conduction. Conduction किसमें होगा? In the solid object. One solid object से other solid object में किसके थ्रू होगा? Conduction. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. While your mama cooking, आपने देखा होगा कुकिंग वेसल्स जो हमारे होते हैं that are made up of metal. When we are going to cook on the flame, like on the gas burner, there is a flame, so we can't put wooden material on it. It can burn. We can't use plastic utensils because it can melt. So we use metal utensils to cook our dishes because metal can conduct the heat into our food. तो आपको पता है फ्लेम जब मेटल के वेसल में लगेगी, वेसल के बेस पे लगेगी, तो वो जो हीट है वो बेस से ट्रांसमिट होती है अपर साइड में, एंड आवर फूड बिकम कुक आफ्टर सम टाइम बिकॉज हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. ओके, एंड द नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन ये होता है वाटर में या लिक्विड्स में होता है कन्वेक्शन. तो we will tell you later about the convection in the next video. And what is the radiation? And the third is radiation. You know, we get the sunlight from the source, from the sun that is too far from us to the earth. You know, there are maximum distance from the sun to the earth, but before entering in our atmosphere there is vacuum also, because sun और अर्थ के बीच में एक एटमॉस्फेयर लेयर तो है हमारे पास, बट बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर देयर इज स्पेस, मीन्स देयर इज वैक्यूम. वहाँ पर कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है. सो सनलाइट कैन रीच अस बाय द रेडिएशन मोड. यू नो, radiation do not need any medium to transfer the heat. In the conduction and the convection, the medium is necessary to transmit the heat from one object to the other object or one place to the other object, one place to the other place. Medium क्या होता है? जैसे कि it can be solid, liquid और gas. Solid में क्या होता है बेटा? पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और वो सॉलिड में हीट जब ट्रांसफर होती है तो विच मोड वी यूज? कंडक्शन. आपने देखा है ये, इफ यू हीट द नाइफ, एट द टिप ऑफ द नाइफ, आपने नाइफ को इस टिप पे गर्म किया है, एंड यू कैन पुट सम वैक्स ऑन द अदर एंड ऑफ द, इफ यू आर हीटिंग दिस पॉइंट ऑफ द मेटल एंड यू कैन stick some waste stick wax at the different distance, you will see after some time the wax that is nearby of this tip which is getting heated, it will melt, and after some time the wax at some distance it will melt. But if you wait for more time, wax which you stick here, it will also melt, but it will take some
some time. So you can say we are heating this rod at this tip, but the heat is getting transmitted from this point to here. It means it shows, this practical shows that heat gets transferred from one place to the another. In this way, heat transmit to one place in the another, and that technique use the method of conduction. So conduction में जिस medium की जरूरत है, that is called solid, especially in the metals. So thank you for watching this video. We will tell you about more in the heat and laboratory thermometer, clinical thermometer, convection, radiation, all in the next video. So thanks for watching this video. You can revise these topics. Thank you. Good morning, student. Today I will teach you chapter number 4, which is heat. Topic is heat. Heat is form of energy. हीट को हम कैसे फील करते हैं, हीट कैसे होती है, किससे टच करने से पता चलता है. Woolen clothes are obtained from animal fibers. Woolen clothes are generally dark in color and are worn in the winter season as they protect us from the cold environment. You know, woolen clothes हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से obtained होते हैं? From एनिमल्स के फाइबर से हम वुलन क्लॉथ तैयार करते हैं और वुलन क्लॉथ जनरली डार्क कलर के होते हैं और वुलन क्लॉथ हमें कोल्ड एनवायरनमेंट यानी सर्दी के दिनों में ठंड से बचाते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स. ऐसे ही कॉटन क्लॉथ्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट फाइबर से. द कॉटन क्लॉथ्स आर जनरली लाइट इन कलर. जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो जनरली लाइट कलर के होते हैं एंड आर वर्न इन समर सीजन सो दैट वी कैन फील कूल. जनरली हम कॉटन क्लॉथ कब वेयर करते हैं? गर्मियों में, समर सीजन में. क्यों? क्योंकि कॉटन फाइबर, कॉटन क्लॉथ हमें हमारी बॉडी को कूल करता है, यानी हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. हॉट एंड कोल्ड. We can understand if an object is hot or cold by the sense of touch. However, it can trigger sometimes. Therefore, we use a thermometer. हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म, हॉट एंड कोल्ड कैसे फील करते हैं? टच सेंस से. हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन. ये हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं. ये हमारी बॉडी में सेंस हम किसी चीज को फील करने के लिए यूज में आते हैं. जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट को टच करके पता कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और एक्चुअल टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का लेने के लिए हमें थर्मामीटर का यूज करना होता है. इसको डिग्री सेल्सियस में लेने के लिए यूज किया जाता है. Thermometer, it is a device that can be used to find out how hot an object is. Thermometer क्या है? Thermometer एक डिवाइस है जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना हॉट है, उसको देखने के लिए किया जाता है. In other words, we use a thermometer to measure the temperature of an object. और अदर वर्ड्स में हम इसको बोले तो थर्मामीटर का यूज हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं. मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ थर्मामीटर. फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर, दिस इज फिगर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. हम अपने घर में फीवर, हमारी बॉडी में जब हमें फीवर हो जाता है हमें, तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फीवर को देखने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे पर्सन की बॉडी टेम्परेचर को नापने में यूज किया जाता है. इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब. ये कांच का बना होता है और यूनिफॉर्म थिकनेस, एक समान मोटाई का बना होता है. द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट 1
thermometer, which therefore indicates the temperature of the body. The level of the mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि ग्लास ट्यूब का बना होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब यानी एक समान मोटाई का कांच का ग्लास होता है, उसका बना होता है। और यहाँ पर शुरू में इसके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल होता है। क्लियर? और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब टेम्परेचर मरकरी का अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ बढ़ना होता है और यही टेम्परेचर को इसमें जो स्केल बना हुआ है ये हमारे को मरकरी जिस पॉइंट पर जाकर रुकती है वो ही उस चीज का टेम्परेचर होता है। जैसे द लेवल ऑफ द मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल गिवन ऑन द थर्मामीटर। हम इस थर्मामीटर के अंदर जो स्केल दिया होता है उसी में मर्करी से मेजर जो टेम्परेचर है मर्करी से मेजर किया जाता है। द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये किसमें रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर को? डिग्री सेल्सियस। जनरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस विच इज द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। On an average, the temperature of the human body is around 37 degree Celsius. और एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। The clinical thermometer has a small sharp curve present near the bulb. थर्मामीटर में बल्ब के पास में एक कर्व होता है जो किंक, इसको किंक कहते हैं। बल्ब के पास में एक कर्व आता है, इसको किंक कहते हैं। और ये किंक क्यों होता है थर्मामीटर में? The clinical thermometer has a small sharp curve kink present near the bulb. This prevents the mercury level from falling down on its own in the thermometer. ये किंक एकदम से थर्मामीटर में मरकरी को नीचे आने से रोकता है। How to use the clinical thermometer? क्लिनिकल थर्मामीटर को हम कैसे यूज करते हैं? Firstly, wash the thermometer with an antiseptic solution. सबसे पहले थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए। Before taking the temperature, the thermometer is given a few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। आपने जनरली देखा होगा कि थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करने के बाद और उसको जब निकालते हैं इस तरह से उसको जर्क करते हैं। जर्क करना यानी उसमें जो मरकरी होती है उस मरकरी को 35 डिग्री सेल्सियस पर लाना होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसको जर्क करके इस तरह से करने से वो मरकरी लेवल नीचे आ जाता है और then the thermometer is placed beneath the tongue for about a minute. उसके बाद थर्मामीटर को हम अपनी टंग के नीचे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। Then you can take it out and observe the temperature reading on the thermometer. 1 मिनट बाद आप जब थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो उसमें आप देखेंगे मरकरी लेवल आपको अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो जिस पॉइंट पर आकर डिग्री पर आकर रुकता है वो ही बॉडी का टेम्परेचर होता है। What precautions should be taken while using the clinical thermometer? जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? Wash the thermometer before and after using it. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें थर्मामीटर को यूज करने से पहले भी वॉश करना चाहिए और यूज करने के बाद भी उसको वॉश करके रखना चाहिए। किसमें? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। ओके, मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। आप थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रखने से पहले ये देख लें कि जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। Keep the thermometer straight in order to see the mercury level precisely. It should always be held with care or it can break down. You should not touch the bulb of the thermometer at all. उसको बहुत थर्मामीटर क्योंकि ग्लास ट्यूब का बना होता है उसको बहुत केयरफुली पकड़ना होता है और उसका जो बल्ब स्ट्रक्चर होता है जहां पर
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करने के लिए किया जाता है। जनरली वाटर या लेबोरेटरी में केमिकल वगैरह सबको बॉइलिंग पॉइंट नोट करने के लिए या कूलिंग पॉइंट नोट करने के लिए किया जाता है और इसका मेजरमेंट 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। What precaution should be taken when using a laboratory thermometer? हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के लिए कौन से प्रिकॉशन यूज में लेने चाहिए? You should always follow the same precautions as that of the clinical thermometer. इसमें जैसे जो प्रिकॉशंस हम क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज करते हैं वो ही हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने में रखने होते हैं। You should always hold the laboratory thermometer in a straight upright position without tightening it. हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर को सीधे रखना चाहिए, सीधे पकड़ना चाहिए, टाइट नहीं पकड़ना चाहिए। The bulb of the thermometer should never touch the surface of the container in which the substance is kept. हमेशा जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज किया जाता है इसको स्ट्रेट रखना चाहिए और जब इसको आप किसी सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो उसमें कंटेनर में नीचे टच नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर हमेशा थोड़ा बॉटम से ऊपर रहना चाहिए। However, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all the sides. Other types of the thermometers. Minimum maximum thermometer. It is a thermometer used to measure the minimum and maximum temperature of the day by weather forecaster. Other types के thermometer जैसे कि minimum maximum temperature thermometer. It is a thermometer. इस थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है? मौसम की जानकारी के लिए। टेम्परेचर डे बाय डे वेदर फोरकास्टर यानी मौसम के बारे में वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर का यूज किया जाता है। दिस इज फिगर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। Digital thermometer. It is sometimes difficult to handle a mercury-filled thermometer, especially when it breaks and the mercury falls out. जनरली क्या होता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को कांच की ट्यूब वाले थर्मामीटर को यूज करते हैं तो उसको यूज करना यानी पकड़ना डिफिकल्ट होता है और कई बार वो छूटने से गिर जाता है और जो मर्करी है वो निकल जाता है। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर डज नॉट कंटेन मर्करी, इट डायरेक्टली डिस्प्लेज द करेक्ट टेम्परेचर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हैं जिसके अंदर डायरेक्ट आपका टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता कि इसमें मर्करी नीचे गिर जाएगा या टूट जाएगा, इसलिए इसमें डिस्प्ले हो जाता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज ज्यादा होता है। Okay, have a nice day. We will continue this chapter in next class. Okay. Good morning, students. Today our topic is the transfer of heat. Heat का transfer कैसे होता है? The flow of heat always takes place from an hot object to a cold object. हीट का फ्लो हमेशा कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। फर्स्ट इज कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। हीट का हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होना कंडक्शन कहलाता है। सम ऑब्जेक्ट्स कैन कंडक्ट हीट व्हाइल अदर्स कैन नॉट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं और कुछ हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। दिस इज फिगर ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन यानी कंडक्शन। इस तरह से मेटल रोड ली हमने और उसको हीट दी आंसर, ठीक है। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स आर कंडक्ट ऑफ हीट, हीट को कंडक्ट करते हैं मेटल ऑब्जेक्ट। तो यहां से जब हम हीट देते हैं और यहां पे टच करते हैं, आफ्टर सम टाइम हीट फ्लो कॉल्ड
जनरली देखा होगा, हम कभी वायर को, कॉपर वायर को लाइट के टच करते हैं तो वुड का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वुड में कभी भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक और वुड का हम यूज करते हैं। प्लास्टिक और वुड में कभी भी हीट फ्लो नहीं होती है। These are insulators. wood, प्लास्टिक किचन में हम जितने भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं, फ्राइंग पैन है, कुकर है, प्रेशर कुकर है, उसमें आपने देखा होगा हैंडल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो उस टाइम हम गैस की फ्लेम पर उसको रखते हैं, उससे हीट मिलती है उस यूटेंसिल्स को, और वो हीट हमें पकड़ने के लिए हैंडल तक अगर हीट आ जाएगी तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए वहां पर इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज संवहन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट का फ्लो किसमें? अभी हमने पढ़ा हार्ड में, मेटल्स में, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैसेस में। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस में हीट के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन यानी संवहन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ द हीट गेट हीटेड फर्स्ट। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड्स। द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हेवियर टेक द place, and this process continues until the whole liquid or the gas gets heated. That is why the area above the flame of a candle always feels hot, but the area on the sides of the candle does not. आपने देखा होगा, हम किसी वाटर को बॉईल करना रखते हैं तो जैसे हम गैस पर उसको बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो पहले ऊपर के पार्टिकल्स कूल रहते हैं, कोल्ड होते हैं, ठीक है। नीचे के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट से अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ आते हैं, हल्के हो जाते हैं, और जो ऊपर कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चलते हैं। इस तरह से इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं और आफ्टर सम टाइम्स पूरा लिक्विड जो है वो हॉट हो जाता है। क्लियर? तो वो जो पार्टिकल्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड्स में जो रेस होती है, फ्लो होता है हीट का, वो संवहन कहलाता है। क्लियर? दिस इज फिगर ऑफ कन्वेक्शन। ये एक केटली है जिसको हमने फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। अब वार्म पार्टिकल्स, रेड कलर में जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो वार्म मॉलिक्यूल्स है, और ये जो ब्लू कलर में है ये कूल मॉलिक्यूल्स है। ये जब वार्म मॉलिक्यूल्स नीचे से गर्म होते हैं तो ये अपवर्ड पोजीशन में आते हैं, और ऊपर से जो कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह की ये धाराएं चलती हैं, संवहन इसीलिए को बोलते हैं। कन्वेक्शन मींस ये अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह से धाराएं चलती हैं, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज रेडिएशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब हीट का ट्रांसफर वेव के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है, किरणों के रूप में होता है, उसको रेडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन हीट रीच द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन। आपको पता है सन हमसे काफी दूर है, बहुत लंबी दूरी पर है, लेकिन वहां से जो सन रेज आती है सरफेस पर, वो किसके थ्रू आती है? रेडिएशन के थ्रू। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएट्स यानी हीट को रेडिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, यानी एनवायरनमेंट के अंदर। Hence, many times an object get heated just by being near to a hot object. कई बार क्या होता है, हम किसी गर्म चीज के पास ठंडी वस्तु रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो भी गर्म हो जाती है, यानी हीट ट्रांसफर हो गई, यानी उस हीटेड ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट जो है वो रेडिएट्स होती रहती है और वो उसको एनवायरनमेंट को वार्म कर देती है। दिस इज फिगर ऑफ रेडिएशन। आपने देखा है जब हम सर्दियों में या वैसे भी किसी चीज को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, जैसे लकड़ी है,
दिखाया है जलाते हुए। इससे से जब फ्लेम्स निकलती हैं और आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको हीट टच होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर से रेडिएशन, these are radiations. Okay? Okay, have a nice day. We will continue next topic in next class. Okay. Good morning students. Today our topic is radiation. Radiations विकिरण. First is sea breeze and land breeze. Breeze means ठंडी हवा, sea breeze समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा, and land breeze लैंड से चलने वाली ठंडी हवा. First is sea breeze. Sea breeze, the wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. जब हवा समुद्र से लैंड की तरफ ब्लो करती है उसे सी ब्रीज कहते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन. दिन के समय लैंड सूर्य से आने वाले विकिरणों की वजह से जो लैंड होती है, धरती होती है, वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड, हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन द लैंड. और जो सी है, समुद्र है, वो भी हीटेड गर्म होता है, लेकिन लैंड की अपेक्षा कम होता है. Hence, the air above the land gets heated faster than the air above the sea. The hot air from the land rises above as it is lighter, and the cool air from the sea being heavier than its place. This results in the sea breeze. जो समुद्र से जब लैंड गर्म हो जाती है तो उससे सन्स की रेडिएशन जब लैंड पर आती है तो लैंड दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इससे वार्म एयर उठती है. वार्म एयर हल्की
ठंडा और कंफर्टेबल रखते हैं। ऑन द अदर हैंड डार्क कलर क्लॉथ एब्सॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन एंड इज अस वार्म इन विंटर्स। और डार्क कलर कपड़े क्या होते हैं, हीट को एब्सॉर्ब ज्यादा करते हैं, इसलिए वो हमें सर्दियों में यानी विंटर सीजन में हमें हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। इसलिए हम विंटर सीजन में डार्क कलर कपड़े, डार्क कलर क्लॉथ यूज करते हैं एंड समर सीजन में हम लाइट कलर क्लॉथ यूज करते हैं। Second, woolen clothes in winters. We wear woolen clothes in winters to keep us warm. Wool is a poor conductor of heat. In winters, woolen clothes keep us warm body to the cool surroundings. Winter season में हम woolen clothes wear करते हैं because wool is a poor conductor. हीट का poor conductor होता है और ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है और हमारे चारों ओर जो कूल एटमॉस्फेयर होता है उससे हमें वार्म रखता है। मोreover there is air trapped between the wool fibers. As we know, air is also a poor conductor of heat, so our body does not receive its heat. That is the reason why we feel warm when we wear woolen clothes in winter. मोस्टली क्या होता है, वूलन जो होता है, वूल फाइबर जो होता है, एक तो वो हीट का पोर कंडक्टर होता है, दूसरा वो एयर को ट्रैप कर लेता है यानी अपने फाइबर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें एयर को ट्रैप कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं आ सकती और बाहर की जो कूल एयर होती है वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम वूलन कपड़े, वूलन क्लॉथ्स विंटर सीजन में वेयर करते हैं। Why do we wear light colored clothes in summer? The light colored clothes reflect the heat back into the environment and keep us cool during the summer time. हम समर सीजन में लाइट कलर कपड़े क्यों वेयर करते हैं? क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है। Why do we wear dark colored clothes in winters? The dark colored clothes absorb the heat from the environment and keep us warm. जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कूल एनवायरनमेंट से वार्म रखते हैं यानी हमें हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देते। हाउ डू वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म? वूलन क्लॉथ्स हमें गर्म कैसे रखते हैं, हमारी बॉडी को वार्म कैसे करते हैं? द वूलन क्लॉथ्स आर अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ हीट। वूलन क्लॉथ्स हीट के बेड कंडक्टर होते हैं यानी इनके अंदर हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकती। Therefore, they do not allow the heat from the body to move out in the environment. इसीलिए हमारी बॉडी से जो हीट है वो बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में नहीं आ सकती। As a result, the air present between the woolen cloth and our body becomes hot and this makes us feel warm. Similarly, two thin blankets provide more heat than one thick blanket. ऐसे ही दो पतले ब्लैंकेट्स की अपेक्षा एक मोटा ब्लैंकेट, two thin blankets provide more heat than one thick blankets. एक मोटे कंबल की ब्लैंकेट की अपेक्षा दो पतले ब्लैंकेट ज्यादा वार्म करते हैं because air can be trapped between the two thin blankets. क्योंकि जो एयर है वो दो ब्लैंकेट्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाती है, इस वजह से एक मोटे ब्लैंकेट की अपेक्षा दो पतले ब्लैंकेट हमारी बॉडी को ज्यादा वार्म पहुंचाते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।